Hello and welcome to Beautiful Mind Institute. I am Arun Kumar. We are discussing fundamentals of psychology, and in this part, I am going to discuss about one of the important methods of psychology that is called experiment. What is an experiment? See, experiment is a method of science. So, we conduct experiment to know the causes of effect. There are so many effects. We try to understand what causes this thing. We can assume, for example, you can assume that whether you will study more in library than alone in your own room, you can do much better in cycling when you are doing cycling with your friends or when you are doing alone. These kind of things, when you want to be very sure that whether this social condition is improving your performance, how will you test this thing? How can you be very sure? Forget about assumptions. बहुत सारे लोग एज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं आप प्रूव करके दिखाओ ऐसा होता है, तो साइंस रन्स ऑन एविडेंसेस, प्रूफ। जब आपके पास प्रूफ होगा तभी उसको साइंटिफिक कहेंगे, है ना। एंड वेल स्क्रूटनाइज प्रूफ, लॉजिकली उसको स्क्रूटनाइज भी किया जाएगा उस प्रूफ। अंडरस्टूड। बहुत सारे प्रूफ ऐसे होते हैं जो दिखते हैं लेकिन उसका लॉजिकली कनेक्ट भी करना पड़ता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि वीमेन ज़्यादा कम एक्सीडेंट करती हैं ड्राइविंग में और मेल ज़्यादा, तो डेटा तो दिख जाएगा, एविडेंसेस दिख जाएगा, बट सी दिस थिंग दैट इफ यू से हाउ मेनी वीमेन ड्राइवर्स आर देयर, हाउ मेनी मेल ड्राइवर्स आर देयर, then differences will come and you will say no, drivers are more, baseline is this, male drivers are more, that is this should not be ignored. So this is a logical scrutiny of the fact. Come here. So when I'm talking about experiment, what is an experiment? An experiment is observation under controlled conditions. So whenever we try to check this thing, this kind of prediction, this kind of so-called hypothesis, the relations that you say this causes this. So what you will do? You will conduct an experiment. So first question is, what is an experiment? Experiment. So we can say observation under controlled condition. Observation under, see, you observe the things under controlled conditions. You can say yes, conditions. How? Let me tell you how it is done. I think one of the first experiment in behavioral science has been conducted by one person. His name was Triplett. He conducted experiment in social psychology. And what was the experiment? That fishing sticks and winding, means उसको जो लपेटते हैं ना उसको कहते हैं winding. So speed with which you wind, means जो आप फिशिंग स्टिक में कितनी तेजी से उसको विंड करोगे. This was the situation. So he took two conditions. One condition is that one condition when in pair means social condition, and this one is alone, when you are alone. Getting? Now you are doing, you will be observed under control. Other condition will be control. So first thing you focus here, there are one thing that is called effect and then cause. One thing is called, let me write here, cause
sorry, cause and second is effect. Effect is what? Here behavior. What kind of behavior? Behavior is that winding. विंडिंग का मतलब वही हुआ ना, तो विंडिंग तेजी से जो लपेटते हैं. और काउज क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे सोशल कंडीशंस. सोशल कंडीशन. काउज को बोला जाता है टेक्निकल टर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इफेक्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. लिसन केयरफुली. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. And there are third things that is called other variables that should be called control variable. So this is called control variable. Other conditions should be controlled. For example, here is when you are doing triplet had conducted experiment. In that he took only two conditions. One condition when you will do winding, when you are doing fishing and their other person is also there. Then how quickly you wind the string. And second one, when you are alone, how quickly you wind the things. This was the thing. This is two condition. On this axis he take time taken. मतलब पूरे स्ट्रिंग को विंड करने में, लपेटने में कितना टाइम लगा. हाउ मच टाइम सब्जेक्ट टू व्हेन ही वाज इन सोशल कंडीशन. मतलब ये खुद था और इसके साथ कोई और भी था, है ना. यहाँ पर ये खुद था केवल अकेले. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. यहाँ पे दो लोग हैं, मतलब आप समझ गए होंगे. यहाँ पे दो लोग हैं और यहाँ पे ये सिर्फ अकेला है. देखो, सो इफ यू लुक एट दिस फॉर्मेट, दिस सेज दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द काउज, अस्यूम्ड काउज. इसी को टेस्ट करना होता है in experiment. Effect is what? Dependent variable. So independent variable is manipulated. Now one time you will perform in group, means with another person, another time alone, then with person same alone. Repeatedly करके देखेंगे और हर बार डेटा को नोट करेंगे. I know. And what was the average? Average was this one. Time taken to wind the entire things was this, like that. कितना टाइम लगा पूरा लपेटने में. और ये अकेले था तो ये था. दिस इज सिंबॉलिक थिंग. मीन्स उसको विंडिंग में टाइम कितना लगा पूरे रेल को लपेटने में. तो जब लोग पेयर में थे तो उसको देखो कम लगा है, देखो इसके तुलना में. दिस इज नॉट टू मेजर, आई एम गिविंग यू symbolic thing. So this condition is repeated again and again. And what is that? First you will do independent variable will introduce, means आपको ग्रुप में दिया जाएगा, मतलब उस दूसरे के साथ आप करो और ऑब्जर्व किया जाएगा किस चीज में, कि कितना टाइम लग रहा है आपको. तो दिस इज ऑब्जर्वेशन. So observation under controlled conditions. So what is controlled here? Control means if this is the only condition, it should not be that suppose one person is hungry, subject is one time hungry, another time has eaten something. तब क्या डिफरेंस होगा? वो भूखे के कारण भी उतना नहीं कर रहा है. Suppose thirsty. So there could be other factors that may affect speed with which he winds the string. जो धागा है उसको लपेटता है, वो अदर कारण से भी कम या ज्यादा हो सकता है. लेकिन अगर हम वो सब सारी चीज़ों को कंट्रोल कर दें, यानी कि नहीं आपको एक खास टाइम पे अगर लंच के बाद करना है तो लंच के बाद दोनों बार में ही करेंगे. जब अकेले हो तो लंच के बाद, यहाँ भी लंच के बाद. देन मीन्स ऑल अदर पॉसिबिलिटीज शुड बी रूल्ड आउट, कि नहीं सभी ने खाना खाया था, ऐसा नहीं था कि भूखे हैं. एंड देन हिज परफॉर्मेंस इज नोटेड एंड सी दिस डिफरेंस. सो ट्रिपलेट प्रूव एट लीस्ट दैट इन सोशल कंडीशन परफॉर्मेंस इम्प्रूव. मीन्स जो हमारा परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है. इसको टेस्ट करने का ये मैकेनिज्म है. अब इसको ऐसे समझो दैट
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड and control variable, its name is that this is controlled. इसको रोक देते, कंट्रोल कर देते, उन्हें आइडियल करते, सेम है ना. और डिपेंडेंट वेरिएबल दिस इज मेजर्ड. तो क्या निकल के आया था कंक्लूजन, इन सोशल कंडीशन परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स. यानी कि सोशल कंडीशन में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, एटलीस्ट इन फिशिंग लाइक सिचुएशन. रिपीटेटिव टास्क में ऐसा होता है. जैसे साइकिलिंग आप कर रहे हैं, तो साइकिलिंग अगर आप अकेले करें और किसी और के साथ करें तो साथ में आप ज़्यादा कर पाएंगे. देखा होगा आपने लाइब्रेरी में लोग ज़्यादा पढ़ते हैं सोशल कंडीशंस में, भले ही क्वालिटी कम से कम सिटिंग आवर्स तो ज़्यादा होगा ही होगा. अकेले बैठे तो कितना देर तक लगातार बैठते आप टेस्ट कर सकते हैं, और किसी के साथ बैठे तो कितने देर लगातार बैठते, और एवरेज निकाल दे जाए, एक बार, दो बार, तीन बार. एक बार तो चांस के कारण भी हो सकता है. रिपीटेशन इज द क्रिटिकल टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. सो यू शुड नॉट अस्यूम एवरीथिंग थ्रू वन ऑब्जर्वेशन. आपको बार बार ऑब्जर्वेशन करके देखना होगा. रिपीटेशन, रेप्लिकेशन इज द क्रिटिकल टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. किसी चीज को अगर रेप्लिकेट करके नहीं देख रहे हैं, और सपोज आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग एंड इफ you want to confirm this hypothesis, you can check the same thing, use the same hypothesis and test this thing, and if you find the same result, it will be called it has been replicated and result is same. So it will improve the confidence, that is called reliability and validity of the finding. इसका ज़्यादा बोला जाएगा. reliability का मतलब होता है consistency, same finding come when it is tested again and again. तो वो finding की reliability बढ़ गई है ना. तो जो जब हम किसी चीज़ का बिहेवियरल साइंस में काउज इफेक्ट्स को समझना चाहते हैं कि वाट हर इफेक्ट का कोई काउज होता है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट एक बेस्ट मेथड है. अगर कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए. अदरवाइज देयर कुड बी सेवरल रीजन, एथिकल और प्रैक्टिकल. यू कैन नॉट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन एवरी इशूज. यहाँ पर तो आप कर सकते, इसमें क्या हार्म है. लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे बच्चों को, जैसे मैंने बताया था कि if you need to deprive a child of maternal love for 5 week of first 5 week of life, जन्म से लेकर 5 वीक तक मदर का लव मिलना ही नहीं चाहिए उसे, ऐसा आप ह्यूमन इन्फेंट के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल होगा यहाँ पे, तो हम दूसरे मेथड यूज करते हैं. लेकिन अगर कर सकते हैं तो एक्सपेरिमेंट इज द बेस्ट मेथड टू टेस्ट काउज इफेक्ट रिलेशनशिप. मीन्स to test any hypothesis, or in simple term you can check that to test some prediction. जो आप hypothesis क्या है, tentative prediction explanations of something, ये social conditions के कारण performance improve हो रही है, तो टेस्ट करके देख लेते हैं. तो behavioral science, there are 4 goals of psychology: description, explanation, prediction and control. तो explanation का मतलब what causes this thing. तो cause effect के लिए, explanations के लिए experiment is the best method. But yes, if you do not have experiment, for some reason, if suppose you cannot conduct experiments directly, then you can go for quasi experiments. But that is a compromise, because otherwise फिर क्या करेंगे आप? अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो चलो कुछ देर के लिए थोड़ा कंट्रोल कम होगा. An experiment cannot be better than its control. जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाता है. I hope you have understood the method of experiment in psychology. और इसके पूछते हैं लास्ट में, हम बोलेंगे इसका क्या है प्लस या माइनस. तो दिस इज द ओनली मेथड दैट कैन एस्टेब्लिश काउज इफेक्ट रिलेशनशिप. ये आप जान लीजिए कि किसी कोई चीज किस कारण से हो रहा है, ये जानने है, श्योर होना है आपको. तो दिस इज द ओनली मेथड जिसमें कॉन्फिडेंस के साथ आप कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन एवरीथिंग, यू नो दिस. बट इसका नेगेटिव क्या है? You are controlling the things and then you are observing the way you do in physics and chemistry like that. So the moment you try to control the things, human subjects है, एक मेट सोडियम तो है नहीं, तो बहुत सारे reactions आते हैं. जैसे subjects will expect something and that expectations will affect their responses.
रीडिंग कि हम एक्सपेरिमेंट में भाग ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। वी विल डिस्कस दैट थिंग सेपरेटली। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट, व्हेन आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद ह्यूमन सब्जेक्ट, then I may form impression. I may knowingly unknowingly start giving some cues that may influence the findings. तो ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कतें हो सकती है, सब दिक्कतें हैं, बट सपोज आपने सब कुछ अच्छे से किया, तब भी देयर कुड बी सम issue, and that is called things could be artificial. Means you have created a situation and you are conducting experiment. So this is the situation that you have created. It may not have naturality. Means ये नेचुरल, यानी जिसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि इसका जो एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब इस लैब के बाहर नेचुरल वर्ल्ड में वैलिडेशन इस फाइंडिंग का है या नहीं, आप उसके बारे में श्योर नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, कंट्रोल कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन क्या नेचुरल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, नेचुरल मतलब रियल लाइफ में? तो उसके लिए आपको फील्ड एक्सपेरिमेंट करना होता है, वहाँ पे जाकर देखना होता है, गेटिंग। लेकिन ज़्यादातर फील्ड एक्सपेरिमेंट सोशल साइंस में हमारा सोसाइटी ही तो लैब है, और क्या है, तो वहाँ फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, और अगर दोनों मैच कर दो ठीक है। तो यही मैं कहता हूँ, इसमें आर्टिफिशियलिटी एंड एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है इसका। और दूसरा है कि फाइंडिंग कुड बी ट्रिवियल, उतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। ट्रिवियल समझते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का नहीं हो निकल के आए। लेकिन आर्टिफिशियलिटी वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट थिंग्स कुड बी आर्टिफिशियल, है ना। इसमें नेचुरल वो फ्लो नहीं हो सकता, या नेचुरली जो आप होगा वो 100% यहाँ नहीं हो सकता। तो आर्टिफिशियलिटी इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, ये याद। एंड प्लस तो आप जानेंगे कि इसका फाइंडिंग जो इंटरनली वैलिड है, यानी कंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल में ये हमने सब कुछ कंट्रोल करके दिखाया कि सोशल कंडीशन में, जस्ट आप पढ़ाई सोशल कंडीशंस में कर रहे हैं इसलिए अच्छा कर रहे हैं। तो सोशल कंडीशंस हैव इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। In simple term, social condition improves performances. This is called social facilitation. Social facilitation, ठीक है। इनोवेशन भी हो सकता है। सोशल इनोवेशन का मतलब है कि अकेले में आप अच्छा कर रहे हैं, जैसे क्रिएटिविटी में सोशल इनोवेशन दिखता है। क्रिएटिव वर्क अकेले में ज़्यादा अच्छा होता है, सोशल कंडीशंस में खराब होता है। डिपेंड्स अपॉन द टास्क ऑल्सो, बट यस, इन जनरल यू कैन से दिस। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। मिलेंगे अगले वीडियो में, अब बात करेंगे किसी दूसरे मेथड। Thank you very much.